Hello friends, I am Bhagyashree Deshmukh here from 4th standard. Lesson number 1 I am going to teach you. The name of the lesson is the English exam. Students, open page number 5, the English exam. See, here one picture is there in your book and something is written there. Students, we have to just see what is going on there. What the students are doing? क्या कर रहे हैं सब बच्चे? प्लेग्राउंड का पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है. कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बैठकर बात कर रहे हैं. और हमको कैसे पता चलता है कि ये स्कूल का है? क्योंकि आपके जैसे सब लोग भी यूनिफॉर्म में हैं. So, do you enjoy going to school? I know आपका आंसर होगा yes ma'am. Yes, we enjoy going to school. क्यों? What do you enjoy most in the school? क्या पसंद आता है आपको स्कूल में? Teacher, students, friends और बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. आप बोलोगे मैम हमको फ्रेंड के साथ खेलना अच्छा लगता है. कोई बोलेगा मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें करना अच्छा लगता है. सो यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग विद योर पार्टनर कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है स्कूल में आके. राइट योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज इन स्कूल. स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्क दैट सब्जेक्ट. कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? इट्स होली योर चॉइस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको राइट करना है. कोई भी सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी आपको पसंद है, शायद ड्रामा हो सकता है, डांस हो सकता है, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद आती है वो आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल राइट करना है. देन कंप्लीट दिस सेंटेंसेस हियर. फर्स्ट वन, द बेस्ट थिंग अबाउट स्कूल इज. व्हाट यू थिंक द बेस्ट थिंग फॉर आवर स्कूल इज, दैट वन यू हैव टू राइट. डोंट टेक एनीवन्स हेल्प, यू हैव टू राइट विथ योर माइंड ओनली. I wish we could blank in the school. कि हम क्या कर सकते थे, क्या करना चाहते थे, ये भी आपको अपने चॉइस से यहाँ पे राइट करना है. Students, here is one story. Next page, open page number 6. Here is one story of one student. See, Raghu. Raghu is there. See the picture. एक क्लासरूम का पिक्चर है. क्लासरूम में कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं. कोई सोच रहा है, कोई बैठा है. See what all are doing there. Raghu was very excited. He had his English exam that day. It was his favorite subject. One student like you, Raghu is very happy today because English is his favorite subject. And now at that day he is going to give the exam of English. होता है ना ऐसे कि हमें जो सब्जेक्ट पसंद है हम वो एग्जाम के लिए बहुत राह देखते हैं. बहुत देर तक हमको लगता है कि नहीं हम हमारा फेवरेट सब्जेक्ट का एग्जाम फट से कंप्लीट करें. So what he is thinking, see, English is my favorite subject. I hope I do well in my exam today. He is having a very good mood and he is happy and saying, English is my favorite subject and I hope I will do well. And in this exam, yes, I will do it best. Soon it was time for the exam to begin. See, ma'am is there in the class. The teacher started distributing the question papers. Raghu waited impatiently. See, in this picture you can see all the students are looking to ma'am and ma'am please give me paper. They all are waiting, especially Raghu is waiting for the exam. Because why he is waiting? Yes, because he likes the English subject and he wants to write English exam fast. I am so eager. See Raghu what he is saying, I am so eager to write the exam. I wonder if questions on my favorite lesson will be included. See, बुक में भी कुछ लेसन ऐसे होते हैं, कुछ स्टोरी ऐसी होती है जो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. सो रघु इज ऑल्सो इन थिंकिंग दैट क्यों ना ऐसा हो जाए कि जो मुझे पसंद है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आए एग्जाम में. व्हेन रघु गॉट द क्वेश्चन पेपर ही वाज शॉक्ड. ओह स्टूडेंट्स, सी हिज फेस रिएक्शंस. ही इज इन समहाउ एंगर, समहाउ टेंशन, समहाउ कंफ्यूज्ड मूड. He couldn't believe his eyes. What happened? See, remaining students are in a relaxed mind. I think something is going wrong there. What Raghu is thinking? There are 4 spoons and 6 plates on each table. Oh, how many? What is this? This is not the English paper. Oh, कुछ confusion हो गया. Raghu is waiting for English paper, but here what he got? Maths paper, because the question is there. There are 4 spoons and 6 plates on each table. How many? So, see what happened. अगर ऐसा आपके साथ होता है तो कि आप इंग्लिश का प्रिपरेशन करके जाए और मैथ्स का एग्जाम आ जाए. मैम, there is something wrong. Raghu is telling to ma'am that ma'am, please come here. There is something wrong. Here is the maths paper. It is not the English paper. See, on page number 7,
क्या होता है, देखो अभी मैम जाते हैं और पोलाइटली रघु का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं. द होल क्लास लुक एट रघु. सी हाउ द होल क्लास इज लुकिंग टू रघु बिकॉज ऑल आर थिंकिंग व्हाट रघु इज टेलिंग. टुडे इज एग्जाम ऑफ इंग्लिश. दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग. किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रॉन्ग हो गया है. व्हाट्स द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट? मैम इज आस्किंग टू रघु. रघु व्हाट द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो? There's been a mistake, ma'am. This is a maths paper. He is telling to ma'am, there's one mistake. This is a maths paper. This is not an English paper. The teacher spoke kindly to Raghu. Now, जैसे आपके टीचर आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं बहुत प्यार से, वैसे रघु की मैम भी उनके पास जाते हैं और बोलते रघु आप शांत हो जाओ, और बहुत प्यार से उसके साथ बात करते. Of course, it's maths paper today. Is the exam of maths. मैम ने कहा कि यस बेटा, ये मैथ्स का ही पेपर है क्योंकि आज तो मैथ्स का एग्जाम है. नो नो, इट कांट बी टुडे. इज द इंग्लिश एग्जाम. नाउ रघु इज लाइक अ क्रैंकी मूड. ओ व्हाट इज दिस. नो नो, इट कांट बी. ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टुडे इज द इंग्लिश एग्जाम. आज तो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है. मैम मैं तो इंग्लिश का प्रिपेयर करके आया हूँ. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघु's वर्ड. ऑल आर लुकिंग लाइक दिस टू रघु. What he is saying, today's maths paper, and he is speaking continuously about the English paper. You can understand what is going on in the Raghu's mind. I think you must have mixed up the date. Did you check the date sheet? अब मैम उसे कहते कि बेटा शायद आपने डेट को मिक्स कर दिया है. आपने गलती से इंग्लिश मैथ्स की जगह पे इंग्लिश का पेपर देख लिया होगा. सो मैम उसे कंफर्म करते कि आपने वो डेट शीट देखा था, आपने टाइम टेबल को चेक किया था. हम करते हैं ना, जब भी एग्जाम आती है तो पहले मम्मा क्या करती है, हमको बताती है, हम टाइम टेबल चेक करते हैं, डेट और कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है. तो मैम ने उससे पूछा कि आपने कंफर्म किया है भी कि नहीं. यस मैम, आई हैड चेक इट दिस मॉर्निंग. टुडे वी वर सपोज्ड टू हैव एन इंग्लिश एग्जाम. ही इज टेलिंग अगेन एंड अगेन. मैम यस, मैंने चेक किया था और यस आज इंग्लिश का ही पेपर था, मैथ्स का पेपर नहीं है. रघु was in tears. Was in tears means what? He is crying. You know, you can understand what the condition of Raghu. क्योंकि अगर हम किसी और एग्जाम का प्रिपेयर करके जाओ, कोई और एग्जाम आ जाए तो हमारी भी सिचुएशन शायद यही होगी. He didn't know what to do. He just stared at the paper. Stared. Student, here is one new word for you. Stared. S-T-A-R-E-D. Stared means in a very shocked situation. Shocked. C-H-O-C-K-E-D. He just stared at the paper. Just ऐसे देख रहा है कि अब मैं क्या करूं. मैंने इंग्लिश का किया, मैथ्स का पेपर आ गया. He can't control his emotions. He just started crying. Oh ma'am, this can't be happen. Why? रघु डोंट बी सो अपसेट. अब मैम रघु को सहलाती है और कोशिश करती है कि रघु अपना माइंड शांत करे, जो पेपर आया है उस पेपर को फेस करने के लिए. मैम कहते रीड द क्वेश्चंस. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम. मैम उसका हौसला बढ़ाती है कि डोंट वरी बेटा, जस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर. और मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा. एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे रघु. आई हैड ट्रस्ट ऑन यू, जस्ट गो अहेड. बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे. अगेन रघु इज इन कंफ्यूजन मूड. नो मैम, ही जस्ट क्राइंग एंड टेलिंग नो 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 नो, आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश. वेल, द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो. नाउ मैम इज टेलिंग टू रघु नो नो, इंग्लिश का एग्जाम तो कल होने वाला है. टुडे देयर इज अ मैथ्स एग्जाम एंड यू हैव टू राइट दिस. Raghu was totally confused and couldn't think clearly. Now, see the picture, the situation of picture. What the Raghu is thinking? What if I do badly in maths? अगर मैंने पढ़ाई नहीं और मैंने अगर अच्छे से किया नहीं तो मेरे मैथ्स में नंबर कम आए तो. So many questions are there in Raghu's mind. It was supposed to be the English exam today. आज तो इंग्लिश का ही एग्जाम होना चाहिए था. So students, I know that कि अब आगे क्या होने वाला है. You all are very curious. So we will see in the next video. Thank you.